Hello students, this is Kiran Saxena, your subject teacher of English. Welcome to the PowerPoint presentation, subject English class 9. Today we are discussed about the lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Let's start with the introduction of the author Isaac Asimov, occupation writer, born in 2nd January 1920, death date 6th April 1992, education from Columbia University and Boston University of Medicine. Place of birth is Petrovich, Russia. Place of death, New York. Originally from Isaac Yadovich Asimov. His name is original is Isaac Yadovich Asimov. Let's start with the previous knowledge. What kind of school would you want to have in the future? किस तरह का स्कूल आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं? How much will the computer be involved in the future education? आपके फ्यूचर एजुकेशन में कंप्यूटर कितना इन्वॉल्व रहेगा? Will you feel more happy in a more developed high-tech society? Why or why not? क्या आप बहुत हैप्पी अपने आप को महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, आपकी सोसाइटी इतना हाईटेक हो जाएगी? क्यों और क्यों नहीं? इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. Isaac Asimov depicted a school system which is independent of human teach and based on technical advance. The main advantage is the individual teaching which can train the personal talent. In this system there are no human mistakes and it is a perfect way to give every child the same knowledge and information. But there are some disadvantages too. Human people do not learn like a computer. I think learning has to be a kind of fun. Otherwise, the probability of forgetting is higher. Studies have come to the result that you can learn things better if you have fun while you are learning. Isaac Asimov जो स्कूल का सिस्टम है, लर्निंग सिस्टम है, उसको थोड़ा सा डिपिक्ट करते हैं और कहते हैं कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन टीचिंग एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल एडवाइस. जो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो कि ह्यूमन जो टीचिंग है और उसमें जो टेक्नोलॉजी को और यूज करने की कोशिश की है. मेन एडवांटेज होता है इसमें कि इंडिविजुअली टीचिंग विच कैन ट्रेन द पर्सनल टैलेंट. तो इंडिविजुअली टीचिंग होती है वो पर्सन को ट्रेन करता है और इस सिस्टम में ना कोई ह्यूमन मिस्टेक नहीं होती है और ये लर्न करने का बच्चे में नॉलेज पैदा करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है. बस थोड़े से इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं. जो ह्यूमन प्यूपिल है, जो ह्यूमन बच्चा है, वो कंप्यूटर की तरह पढ़ नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता. मेरे हिसाब से इसाक एसिमोव कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो लर्निंग है वो काइंड ऑफ फन है. अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इज हायर. अगर आप इसे फन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो जो भूलने की प्रक्रिया है वो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी. Studies have come to the result that you can learn things better if you have fun while you are learning. बहुत सारी स्टडीज की गई हैं जिसमें ये देखा गया कि अगर आप पढ़ाई को फन के साथ पढ़ते हैं, फन के साथ करते हैं तो बेटर लर्न करते हैं. अदरवाइज आप लर्न नहीं कर पाते इतना. Another disadvantage is that there are no social relationship like at school today. If a child lives in a neighborhood and no other children
It is alone and has no social relationship with other children. Learning with friends at school can be motivation. At school today, the pupil improve their communication and their behavior in a group. In Asimov's future vision, there are no human teachers who can give moral values to the children. Giving moral values is the duty of their parents because the mechanical teacher cannot give moral values. एक दूसरा डिसएडवांटेज यानी कि जो कमी है इसके अंदर वो ये है कि बच्चों के अंदर सोशल रिलेशनशिप नहीं बन पाती। इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा रहता है और उसके पड़ोस में कोई दूसरा बच्चा नहीं रहता, तो उस बच्चे के अंदर वो अकेला हो जाता है और उसके अंदर सोशल रिलेशनशिप नहीं बन पाता, वो दूसरे बच्चे का रिलेशनशिप नहीं कर पाता। आज की अगर जो लर्निंग है हमारी, उसमें बच्चा फ्रेंड्स के साथ पढ़ता है और तो उसके अंदर एक सोशल रिलेशनशिप बनती है, आपस में वो फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं। लेकिन एसिमोव का जो फ्यूचर विजन है उसमें ह्यूमन टीचर नहीं है जो आपको मॉरल वैल्यूज दे। ह्यूमन टीचर हमें मॉरल वैल्यूज देता है, लेकिन एक टेक्निकल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर हमें मॉरल वैल्यू नहीं देगा। Summary of the chapter. In the year 2157, the 13-year-old Tommy finds an old book. He and Margie, who is 11, find it strange that the words on paper do not move after having been read. Nowadays, they only read stories on the computer screen. The book is about school centuries ago. Margie is very surprised that in the past people had a person as a teacher and that all children of the same age learned the same things and went to a schoolhouse with other children. Margie wants to read more of the books, but first she has to learn with her mechanic teacher whose level is too advanced for her, and she thinks school in those days was much better than today. 2157 की बात की गई है इसमें, जिसमें 13 साल के टॉमी को एक बुक मिलती है, एक बहुत पुरानी बुक मिलती है। वह और मार्गी, इसके दो कैरेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी। उनको ये बुक मिलती है, दोनों उस बुक को पढ़ते हैं। मार्गी जो 11 साल की है, वो जब उस बुक को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि उसके अंदर पेपर्स हैं और पेपर पे जो वर्ड लिखे हैं वो मूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो इस समय जो पढ़ाई करते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पे स्टोरीज को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ये जो बुक थी सेंचुरीज एगो थी, शताब्दियों पहले की बुक थी। मार्गी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि उस समय के जो बच्चे थे उन्हें पढ़ाने वाला एक ह्यूमन टीचर था और बच्चे दूसरों बच्चों के साथ स्टडी करते थे और एक स्कूल में जाते थे, अपने घर में ना पढ़ करके वो एक दूसरी बिल्डिंग में जा करके बच्चों के साथ पढ़ते थे। मार्गी उस बुक को और भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपने मैकेनिकल टीचर था, उससे पढ़ाई करनी थी, जिसका स्टैंडर्ड बहुत एडवांस था। और वो ये सोचती थी कि जो ये स्कूल है उससे पहले वाला स्कूल ज़्यादा बेटर था। School in the future will be very bad. School nowadays is very good. The people have much fun. For example, in the line 18, Margie says, "I hate school." And in the last two lines, there is written, Margie was thinking about how the kid must have loved in it the old days. I also think that school nowadays is better than in the story. In the future, in the school, as described by Asimov, the social aspect is lost. There are no forms anymore. Everybody sits in front of his computer, and the people cannot learn together because every children learn different things. But school today is not as good and funny as Margie thinks. Almost nobody today would say that he likes school, and there are many problems like forms with too many people, but I think regular teachers cannot be the solution.
फ्यूचर स्कूल बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इन दिनों के जो स्कूल हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर की लाइन नंबर 18 में मार्गी ने कहा आई हेट स्कूल, एंड इन द लास्ट लाइन, उसी में लास्ट लाइन में वो कहती है कि सोचती है कि जो बच्चे थे पहले के टाइम में, ओल्ड डेज में, वो बच्चे कितना फन करते थे पढ़ते हुए। और मैं भी ये सोचती हूँ कि इस समय जो पढ़ाई हो रही है, दैट स्कूल नाउ डेज इन बेटर देन द स्टोरी में जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। अगर स्टोरी इस बुक की स्टोरी को देखा जाए तो वो इतनी बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोशल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म है। बच्चे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो सोशल रिलेशनशिप कहाँ से बनेगा? देयर आर नो फॉर्म्स ऑन एनी मोर, एवरीबडी सिट इन द फ्रंट ऑफ हिज कंप्यूटर। जो फ्यूचर स्कूल में दिखाया गया उसमें हर बच्चा अपने कंप्यूटर के सामने बैठ रहा है, कोई दूसरा बच्चा उनके साथ बैठकर नहीं पढ़ रहा है। बट स्कूल टुडे इज नॉट एज गुड एंड फनी एज मार्गी थी। लेकिन आज के स्कूल, अगर मार्गी की सोच की जाए तो आज के स्कूल भी अगर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, आपके अकॉर्डिंग इतने भी अच्छे नहीं जितना मार्गी सोच रही है। इस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो स्कूल अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्कूल है सबके लिए अच्छा नहीं होता। हर बच्चा कहता है कि ये स्कूल मुझे नहीं पसंद है। बट आई थिंक रेगुलर टीचर्स कैन नॉट बी द सोल्यूशन। जो रेगुलर टीचर है वो भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकते। अब आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं आई थिंक द स्टोरी द फन दे हैड इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो स्टोरी अगर हम सोचें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट शो हाउ द वर्ल्ड कुड बी इन 2157 when everybody owns a machine teacher. Isaac Asimov's representation of non-desirable school of future gives you food for thought. How schools should be and how much computer determine our lives. So, in my opinion, it is an excellent story. मेरे अकॉर्डिंग ये जो द फन दे हैड स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें उस समय का 2157 का हमें समय दिखा रहा है जिसमें हर एक व्यक्ति के पास अपना एक मशीनी टीचर होगा। एसिमोव ने ये रिप्रेजेंट किया है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, सोच की भूख है होनी चाहिए, फूड फॉर द थॉट। और स्कूल हाउ शुड बी एंड हाउ मच कंप्यूटर डिटरमाइन अवर लिव। तो जो कंप्यूटर है हमारे ज़िंदगी के साथ कितने जुड़ रहे हैं, उसकी हमें कितनी ज़रूरत है। तो मेरे अनुसार ये जो कहानी है, मेरा ओपिनियन है कि जो कहानी है बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं हम स्कूल को। बेसिक डेफिनेशन बिटवीन द प्रेजेंट ओल्ड एंड द फ्यूचर स्कूल एज फॉलो। मटीरियल, प्रेजेंट स्कूल में मटीरियल हम यूज़ करते हैं रियल बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, येलो क्रिंकल्ड। और फ्यूचर स्कूल में टेली बुक्स होती हैं, ई बुक्स ऑन द स्क्रीन कैन बी चेंज। जैसे कि आज हम आपको स्टोरीज भेज रहे हैं, पीडीएफ भेजते हैं कंप्यूटर्स पर, आपके फ़ोन्स पर, तो वो हमारी क्या हो गई, टेली बुक्स हो गई। हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे उसके अंदर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो हम उसे डिलीट करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ प्रिंट हो चुकी है वो नहीं हट सकती है। टीचर्स का कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंट स्कूल में टीचर अ रियल मैन होता है, कम्युनिकेशन इमोशनल नॉट परफेक्टली। तो रियल स्कूल में जो प्रेजेंट स्कूल है उसमें एक रियल मैन होता है, एक मनुष्य होता है जो कम्युनिकेट करता है, जो इमोशनल भी होता है, और कह सकते हैं कि पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो टीचर को नहीं आता, उस टीचर को बहुत सारी कमियां होती हैं। फ्यूचर स्कूल में रोबोटिक और मैकेनिकल टीचर, गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, नो कम्युनिकेशन, लार्ज, कोल्ड, ब्लैक, अगली एंड मोर। तो फ्यूचर स्कूल में जो आपको टीचर मिलता है वो रोबोटिक होता है, या तो रोबोट या फिर आप उसे मैकेनिकल टीचर कह सकते हैं, जो आपको टेस्ट पर टेस्ट ही देता रहता है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता आपके साथ, बड़ा होता है, एकदम शांत होता है, ब्लैक होता है, अगली होता है, भद्दा होता है, और बहुत सारी चीज़ें भी होती है इसके अंदर।
क्लासरूम्स में डिफरेंस करते हैं। प्रेजेंट स्कूल में टीचिंग इन अ बिल्डिंग, प्रेजेंट स्कूल में आज आप पढ़ रहे तो आपको एक बिल्डिंग मिली है जिसमें आप पढ़ते हैं और मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट द सेम थिंग्स, और बहुत सारे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट सेम थिंग को, सेम लेसन को पढ़ते हैं एक साथ। फ्यूचर स्कूल में इन हिज और हर ओन हाउस, जो स्टूडेंट है उसका अपना घर होता है। नीडलेस टू लीव होम, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ईच किड कुड बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चा डिफरेंटली पढ़ाया जाता है, अलग तरीके से हर बच्चा पढ़ता है। द क्लासेज आर ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और जो क्लासेस है एक टाइम फिक्स है, उसी टाइम रोज होती है। होमवर्क एंड टेस्ट, प्रेजेंट स्कूल एग्जाम, टेस्ट, पेपर, राइटिंग, essay writing. Future school write them out in a computer by pressing the keys, then put them on the slot. तो प्रेजेंट स्कूल में आपका एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, एसे राइटिंग और राइटिंग से रिलेटेड चीज होती है। लेकिन जो फ्यूचर स्कूल में बताया गया उसमें कंप्यूटर पे ही आपको टेस्ट देना है, उसकी कंप्यूटर कीज को प्रेस करके लिखना है और उसमें एक स्लॉट दिया होता है, उसी स्लॉट में अपना काम सबमिट करना होता है। Let's start with the story. The story, the fun they had. These are some key points. बड़े ध्यान से आप सुनेंगे इन की पॉइंट्स को। नंबर 1, मार्गी even wrote about it that right in her diary on the page headed May 17, 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that still, instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो मार्गी ने पहली अपनी राइटिंग लिखी जिसपे उसने हेडेड किया क्या 17 मई 2157, और जो उसका स्टार्ट किया उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि उनके समय में जब वो बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि जिस समय वो पढ़ते थे उस टाइम स्टोरी पेपर पे लिखी होती थी। उन्होंने वो बुक देखी, उस बुक के पेपर्स को पलटना शुरू किया। येलो कलर के पेजेस थे, क्रिंकल थे, थोड़े से पुराने थे, और वो उसको देख करके वो उन्हें बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि जो वर्ड्स थे, जो लेटर्स थे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे जिस तरह कंप्यूटर पर मूव करते हैं। एक पेज पलटा तो सेम देखा कि वर्ड वहीं का वही, पहले वाला वर्ड भी उसी पे दिखाई दे रहा है। G said Tommy, "What a waste! When you are through with the books, you just throw it away. I guess our television screen must have million books on it, and it good for plenty more. I would not throw it away." Same with said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. तो मार्गी जी, यहाँ पर मार्गी है, टॉमी से कहती है कि ये इसको पढ़ना एक वेस्ट, टाइम का वेस्ट है, तो तुम इसे पढ़कर फेंक देना। टॉमी सिर हिलाता है, नहीं। और मेरे माइंड में भी यही चलता है, टॉमी के माइंड में चल रहा होता है। वो कहती है, जो 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है, कि उसने आज तक उतनी बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी के टेलीविजन स्क्रीन में होती हैं। अब वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक्स कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि इशारा करता है, वो बुक पढ़ने में इतना बिजी होता है, इशारा कर दे कि मुझे ये एटिक में मिली है, जो पुराने स्टोर होते हैं वहाँ पर। व्हाट इज अबाउट, कि किसके बारे में? स्कूल के बारे में। मार्गी वो कॉर्नफुल
Maggie was confused. School? What? There to write about school? I hate school. जब सोचती है, सुनती है कि स्कूल के बारे में, स्कूल भी कुछ लिखने की चीज होती है, कैसे लिख सकता है कोई? मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मागी स्कूल को बहुत हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब उससे भी ज्यादा उसे हेट करती है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. वो उसे इसलिए बुरा लगा, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है उसे टेस्ट पर टेस्ट दे रहा होता है ज्योग्राफी में, और वो उसका टेस्ट बहुत बुरा हो रहा होता है, वर्स से भी वर्स होता जाता है। फिर उसकी मदर उसके सिर को हिलाती है प्यार से, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो टेक्निकल इंस्पेक्टर होता है उसे बुलाती है। He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. Maggie had hoped he would not have how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were showed and the questions were asked. That was not so bad. The part Maggie hated most was the slot where she had to put the homework and test paper. She always had to write them out in a pouch code. They made the learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. काउंटी इंस्पेक्टर के घर आता है, जो रेड फेस मैन होता है। वो मागी की तरफ देखता है, हंसता है और उसे एक एप्पल देता है, और उसके मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले जाता है। और वो सोचती है कि क्या पता वो उसे ठीक करे, और वो उसे खोले तो उसे वो फिर से वापस बंद ना कर पाए, पर ऐसा होता नहीं है। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसे 1 घंटे में लेकर के ठीक कर देता है, उनके सामने उसको खड़ा कर देता है उस ब्लैक हेडेड अगली कंप्यूटर को, जिसका स्क्रीन बहुत बड़ा होता है। उसमें सारे चैप्टर्स दिख रहे होते हैं, सारे क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं। मार्गी उस लॉट को बहुत नफरत करती थी जहां पर उसे होमवर्क और अपने टेस्ट को सबमिट करना होता था, और ऐसा वो जब 6 साल की थी तब से ही कर रही थी। मैकेनिकल टीचर उस होमवर्क को बिल्कुल भी समय नहीं लगाता था, और तुरंत कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट दे देता था। Maggie was disappointed. She has been hoping they would take the teacher away together. So she said to Tommy, "Why would you anymore write about school?" तो उसने ये सोचा था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसके मैकेनिकल टीचर को उससे दूर ले जाएगा, इसीलिए वो टॉमी से कहती कि कोई भी स्कूल के ऊपर कैसे कुछ लिख सकता है। Tommy looked at her with her superior eyes. "Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added, loftily pronouncing the word carefully, "centuries ago." टॉमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि स्टूपिड, ये आज के स्कूल के बारे में नहीं है, ये पुराने ओल्ड स्कूल के बारे में, सेंचुरी एगो की बात है। Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Margie को थोड़ा हर्ट होता है, उसके बाद कहती है कि पता नहीं किस तरह का स्कूल है, और उसके कंधे पर हाथ रख के बुक को पढ़ने लगती है, और पढ़ते कहती है, क्या उनके पास टीचर भी था? Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. कहता है हाँ उनके पास टीचर था, बट हमारे जो रेगुलर टीचर है वैसा टीचर नहीं, मैन था। A man? How could a man be a teacher? एक मैन कैसे टीचर बन सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो जो टीचर लड़कों और लड़कियों को चीजें पढ़ाता है, सिखाता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, उन्हें होमवर्क देता है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर, ही इज माई फादर, knows as much as my teacher. Maggie was not prepared to dispute that. She said, "I would not want a strange man in my house to teach you."
वो कहते हैं कि श्योर ही इज माई फादर, हो सकता है वो हमारे फादर है, नो लोग हमारे इसके बारे में ज़्यादा जानते हो। फिर मार्गी कहती है कि मैं तो कभी अलाउ नहीं करूँगी कोई स्ट्रेंज व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, थोड़ा स्क्रीम करता है। तो डॉक्टर बहुत हंसता हुआ बोलता है कि डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग ऑल दैट काइंड गोइंग देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ जा करके, वो टीचर स्कूल में उस बिल्डिंग में पढ़ाता था। श्योर दे वर द सेम एज, और सभी एक ही एज के होते थे। But my mother say a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl in teaches and each kids has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है, मेरी मदर तो कहती है कि जो टीचर है वो बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, एडजस्ट किया जाता है, और बच्चों को उनकी माइंड के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट तरीके से, हर बच्चे को उसके तरीके से पढ़ाता है। They were even half finished when Margie's mother called Margie fool, और अभी बुक आधी खत्म हुई थी कि मार्गी की मदर उसको आवाज लगाती है। मार्गी looked up, not yet mama, now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy to। मार्गी मना करती है कि नहीं, तभी वो उसकी ममा यानी मिसेस जॉन्स कहती है कि अभी ये टाइम है तुम्हारा भी और टॉमी का भी पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद आफ्टर स्कूल विद यू। तो मार्गी टॉमी से कहती है क्या मैं इसके बाद, स्कूल के बाद बुक तुम्हारे साथ और भी पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली। ही वॉक्ड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। तो उसको हाँ बोलता हुआ चला जाता है, सीटी बजाता हुआ, और उस डस्टी बुक को अपने बाजू में दबा के चला जाता है। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्गी अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल रूम में जाती है, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट वाला रूम होता है, जहाँ पर उसका टीचर पहले से आया होता है, फिक्स टाइम होता है उसका आने का। और यहाँ तक कि वो सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी सारे दिन रेगुलर ही आता था। तो उसकी मदर कहना था कि अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेगी तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। The screen was lit up and said today's arithmetic lesson in on the additional of proper fiction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन बोलना स्टार्ट करती है कि आज तुम्हारा अर्थमेटिक का लेसन है और कल का होमवर्क स्लॉट में सबमिट करो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at end of the day. They earned the same thing so they could help on another on the homework and talked about. मार्गी ठंडी आह के साथ काम करती है, लेकिन फिर भी पुराने स्कूल के बारे में सोचते हुए कि उस समय मेरे दादाजी जब छोटे थे तो कितना अच्छा होगा। उनके पड़ोस के बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए एक स्कूल यार्ड में आके खड़े होते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, एक क्लासरूम होता होगा, एक स्कूल रूम होता होगा, एक साथ सबका दिन खत्म होता होगा, एक साथ सभी पढ़ते होंगे और होमवर्क भी एक साथ करते होंगे और एक साथ कितनी बातें करते होंगे। Margie was thinking about how the kids must loved it the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी पुराने स्कूल के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में सोच रही थी कि वो कितना उन्हें स्कूल अच्छा लगता होगा पुराने समय में और वो कितना फन करते होंगे। द फन दे हैड। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। फिक्शन यानी बुक्स एंड स्टोरीज अबाउट इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट्स। Crinkly, having many thin folds. Be supposed to, should, be through with, to have finished during. Slot, place your coin in the slot before getting on the bus. Slot, जब आप बस में या फिर कहीं आप मेट्रो में करते हैं तो आप कॉइन लेते हैं, वो स्लॉट होता है, वहाँ से आप वह उस तरह का, इसी तरह से वहाँ पर आपको अपना होमवर्क पंच करना होता था।
Punch का मतलब a quick strong hit with your fist. Punch, घूसा. Superior, having a higher position or rank than someone else. ऐसा व्यक्ति जिसका पोजीशन बहुत ज़्यादा अप हो. Lofty यानी कि lofty, seeming to think you are better than other people. Lofty का मतलब कि हम अपने आप को जब दूसरे से ज़्यादा बेटर समझते हैं. Dispute का मतलब serious disagreement between two countries or two groups or people. जहाँ disagreement होता है, कोई एक दूसरे की बात को नहीं मानता, उसे dispute कहते हैं. Argue to disagree with someone in words often an angry way. डिसएग्री का मतलब आप जब किसी की बात को नहीं मानते हैं, नहीं उनके शब्दों को मानते हैं, तो वो डिसएग्री करना होता है, यानी कि आर्ग्यू करना होता है. टक, टू पुश द एज ऑफ क्लॉथ और अ पेपर इनटू शॉर्ट सो दे इट लुक्स टाइटर और स्टे इन द प्लेस. टक का मतलब किसी भी चीज़ को उस प्लेस में, क्लॉथ में या कहीं पर से लगा देना. तो अब आपको कुछ होम असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे. आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे. हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? व्हाट डिड मार्गी रिटन इन हर डायरी? हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? व्हाट आर 3 थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? वेयर वाज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? एंड लास्ट, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? Thank you.